All of you. Let's start with a new chapter. For what is democracy? Why democracy? So we have to start with the definition of democracy. So the first thing is, what is democracy? So democracy is a form of government in which the rulers are elected by the peoples. It means it is a form of government where rulers are elected by the peoples. It means people choose their rulers to rule over them. So this definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. It means these definitions separate democracy from non-democratic countries. Okay. So starting with the example, we are going to take countries one by one to understand these definitions. Okay. So first country is Myanmar. Myanmar is our neighboring country. Myanmar is our neighboring countries situated in the eastern sides of India and touches the boundary with Arunachal Pradesh, Nagaland, Nagaland, Manipur and Mizoram. Okay. So rulers of Myanmar are army men. It means the army rules over Myanmar and they are not elected by the peoples. Okay. It means the elections are they are not elected by people. It means they are dictators. Okay. They are dictators. Okay. It means those who happen to be in control of the army, they only became the rulers of the country. People had no say in this decision. It means there is no sayings of the people in this decision. People जो हैं यानी जो लोग हैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते वहाँ पे कि भी क्या चीज़ है, कि ऐसा करना है या हम इस रूलर को चूज करना चाहते हैं या नहीं. ठीक है ना. डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. डिक्टेटर्स है जैसे कि पिनोचेट थे चिली के. ठीक है ना. या लाइक हिटलर इन द जर्मनी. ओके. दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स. Another country we are taking is Saudi Arabia. It's an Islamic country situated in the Sahara Desert. The kings of the Saudi Arabia rules not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. जो किंग है सऊदी अरेबिया के, ठीक है ना, वो राज कर रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं. वो इसलिए रूल नहीं कर रहे हैं कि लोगों ने उनको चूज़ किया है, बल्कि वो इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि वो उनका जो जन्म है, यानी उनका जो जन्म है रॉयल फैमिली में हुआ है. ठीक है ना. यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म रॉयल फैमिली में होता है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वो आगे जाके वहाँ का रूलर या किंग जो है ज़रूर बनेगा. ठीक है. इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे रूलर्स को जो है लोग चूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक है. दिस सिंपल डेफिनेशन इज नो एडिक्वेट. यानी ये जो हमने डेफिनेशन दी अभी, that democracy is a form of government in which rulers are elected by peoples, this definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. This definition says that democracy is the rules of peoples. It means in democracy peoples rule on themselves. Okay. So what happen if we use this definition in an unthinking manner? We would end up calling almost every government that holds an elections a democracy. अगर हम सोचें, यानी इस डेफिनेशन को अगर हम बिना सोचे समझे यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करें, हम ये मानेंगे कि सभी गवर्नमेंट जो होती हैं जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी है. ठीक है ना. बट दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग. लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे इलेक्शन होते हो वो डेमोक्रेटिक हो ही हो. ओके. That's why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. इसलिए हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है ना. हमें डिफाइन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के बारे में. देखना पड़ेगा वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक है और वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करती, ठीक है, दिखाती है अपने आप कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. So we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. इसलिए हम क्या करेंगे,
हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हर वर्ड को, हर शब्द को इस डेफिनेशन में बहुत ही ध्यान से, और स्पेलिंग आउट करेंगे फीचर्स, यानी सारे के साथ जितने फीचर्स होंगे उसके हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो सारे फीचर्स हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो in a democracy, so number one feature is, in a democracy final decisions making power must rest with those elected by the people। कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है, अंतिम निर्णय जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, किसका, पावर का, पावर मेकिंग का, वो किसके हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए, यानी उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिन जो इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं उनके हाथों में होना चाहिए, ठीक है ना। Just like moving to an example of Pakistan, one of the most terrorized country in the world. Okay, so in Pakistan, in October 1999, General Pervez Musharraf led a military coup. मिलिट्री coup का मतलब होता है कि सैनिक षड्यंत्र किया इन्होंने, ठीक है ना, यानी सैनिक तख्ता पलट किया इन्होंने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था 1999 में। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। इन्होंने क्या किया था कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी लोकतांत्रिक रूप से चुनी जो सरकार थी, उस सरकार को उन्होंने हटाया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया अपने उस देश का, कंट्री का, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सारे डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, इन्होंने अपने को वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम। देखिए बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने डेजिग्नेशन यानी कि अपना जो पोस्ट है, ठीक है, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाते थे, अब इन्होंने अपने आप को बदल के प्रेसिडेंट बना लिया, यानी अपने पोस्ट को क्या कर दिया इन्होंने, प्रेसिडेंट कर लिया, यानी अब ये क्या हो गए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 years एक्सटेंशन। 2002 के अंदर एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक है ना, जन यानी लोग, लोगों का मत यानी उनका वोट, संग्रह यानी इकट्ठा करना, यानी उन लोगों से पूछना, लोगों से पूछा गया कि भाई उनको 5 years का एक्सटेंशन चाहिए, मतलब और 5 साल के लिए प्रेसिडेंट उनको बनाया जाए, ठीक है ना। ऐसा जो है 2002 में ऐसा रेफरेंडम करवाया गया था कंट्री के अंदर, जिसको पाकिस्तान में मुशर्रफ को 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया था, ठीक है ना। एक्सटेंशन का मतलब होता है उनका कार्यकाल जो है वो आगे बढ़ा दिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज said that the referendum was based on malpractice and fraud। It means that all these medias, human rights organization and democratic activities, they told that this referendum it is based on the corruption and malpractice, and this was done by the government of Pakistan, okay, government of Pakistan, to make General Pervez Musharraf as a president of India for the more 5 years, okay। So in August 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। So in 2002 he amended the constitution of Pakistan। constitution amended का मतलब सुधार किया, changes कर दिए, he changed the constitution of Pakistan, and according to that order president can dismiss, according to this order president can dismiss नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जो नेशनल असेंबली है जैसे पार्लियामेंट है, इन द प्रोविंशियल असेंबलीज लाइक लेजिस्लेटिव, ही कैन डिसमिस दैट असेंबलीज, ओके, अकॉर्डिंग टू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ओके। नाउ द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क था, जो सिविलियन जो नागरिक अधिकारों के लिए जो कार्य करते थे, उनका जो वर्क वो सुपरवाइज किया जाने लगा, यानी देखा जाने लगा, किसके द्वारा, मिलिट्री ऑफिसर्स के थ्रू देखा जाने लगा इसमें। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस फॉर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि जब ये लॉ बन गया उसके बाद नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन करवाए गए, ओके। So Pakistan has had elections, elected representatives have some powers।
Now, in Pakistan, government conducted elections, and they gave some powers to the elected representatives. Okay, but the final decision rests in the hand of the president. Okay, it means they have some powers, but the final powers rested with the military officers and the General Pervez Musharraf. It means any law made by these national and provincial assemblies, okay, that can be that can be taken as the final decision by the military officers and the General परवेज मुशर्रफ. जो भी लॉ बनाया जाएगा नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, वो सही है, वेदर इट इज़ रॉन्ग और वेदर इट इज़ राइट. अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो जैसा बन रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन यानी वो सही बनाया नहीं बनाया वो डिसीजन कौन ले रहा है? परवेज मुशर्रफ ले रहा है. ओके, क्लियरली देर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक. तो इससे ये मालूम चलता है कि ऐसे कई कारण हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ, पाकिस्तान जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में था, ऐसी कंट्री चाहे वहाँ पे इलेक्शन हुआ लेकिन उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं. ओके, वी कैनॉट से दैट पाकिस्तान इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ. ओके, बिकॉज इलेक्टेड members have power, they have power, but the final decision is taken by the military officer and General Pervez Musharraf himself. Okay, so we can say that the rulers are elected by peoples in Pakistan. Okay, it means can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? No, we cannot say that, because rulers in the Pakistan are elected by people, but they don't have power to take a decisions. Okay, so decisions are taken by the General Pervez Musharraf and military officers, but that these military officers and General Pervez Musharraf are not elected by peoples. Okay, and that's why we cannot call Pakistan as a democratic country under Pervez Musharraf. Okay, so people may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. Okay, so people may elected their representatives. It means when election conducted, people elect their representatives to national and provincial assemblies, but the actual rulers are not these representatives. Actual rulers are army men and the military officers and परवेज मुशर्रफ. यानी कि जो नेशनल असेंबलीज के लिए जो भी इलेक्शन हुए थे, प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे, वहाँ जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ठीक है ना, वो एक्चुअल रूलर्स नहीं है, बिकॉज दे डोंट टेक डिसीजंस. ठीक है ना, डिसीजंस तो वो ले नहीं रहे, तो वह एक्चुअल कैसे माने जाएंगे? दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन ले ही नहीं सकते. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स. जो फाइनल डिसीजन का जो पावर है वो आर्मी ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में है. एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल. और इन दोनों में से किसी को भी जो है लोगों ने नहीं चुना है. ओके, इट मीन जनरल परवेज मुशर्रफ एंड आर मिलिट्री ऑफिसर, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक or peoples. Okay, and this cannot be called people's rule. Okay, so next feature is, it means in democracy final decisions making power is in the hand of the elected representative by the peoples. मेन जो फीचर यही बन के आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन जो होता है, यानी निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति है, जो पावर है, वो किसके हाथ में होना चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज दैट डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन द पावर्स हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग. अगला जो फीचर है, अगला जो विशेषता है इसकी, वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो उसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन कैसे इलेक्शन होने चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. ठीक है ना. जहाँ पे जो करंटली जो पावर में है, वो लोग जो पावर में हैं अभी इस समय, उनके भी हारने के बराबर चांस हो. ठीक है ना.
यानी देखिए अगर गलत काम करे तो उनको भी हारने के चांस उनको होना चाहिए। ऐसा अगर ऐसा होगा तभी इलेक्शन कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, ठीक है ना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना वन मोर नेबरिंग कंट्रीज, okay, and we have tensions with the Chinese armies and all that things. Okay, so elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. Okay, so but for the China's parliament, elections are held every 5 years. So in China, elections are held regularly after every 5 years for electing the country's parliament. And the parliament of China is called Quangguo Renmin Daibiao Daul. It means नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। यानी उसकी जो कांग्रेस है, देखिए नाम चाइनीज में है तो आप याद कर लीजिएगा, नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। इस कांग्रेस के लिए क्या होता है, हर 5 साल में क्या होगा, वहाँ पे इलेक्शंस किए जाते हैं। The National People Congress has the power to appoint the president of country. जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके पास पावर है कि वह प्रेसिडेंट जो है कंट्री का उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना। यानी उसके पास पावर किसकी होगी, कंट्री के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, मतलब उस कंट्री के लिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चुनने की क्या उसके पास पावर है। किसके पास पावर है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास, ठीक है। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। 3000 मेंबर है इसके जो पूरे चाइना से चूज करके या इलेक्ट होके आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी आल्सो। इट मींस इलेक्शंस आर सम पार्ट्स ऑफ इलेक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द आर्मी आल्सो, ओके। यानी आर्मी में से भी कुछ मेंबर्स जो है चुन के इलेक्ट होके आ जाते हैं। सो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यानी अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करना, इलेक्शन लड़ना है तो उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो एकमात्र पार्टी है उस पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ेगा उसको। इट मीन्स दैट पार्टी, इफ दैट पार्टी सेज यस देन ओनली ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन, ओके। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज पार्टीज allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3. The government is always formed by the Communist Party. देखिए केवल वो मेंबर्स जो हैं चाइनीज पार्टीज के, है ना, यानी जो चाइनीज पार्टी वो मेंबर जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें इलेक्शंस कंटेस्ट करने का अलाउड कर रखा है 2 और 3 में। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हमेशा बनती है। सो मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, मेक्सिको। ओके, बिफोर वी स्टार्ट मेक्सिको, लेट्स टेक अ कंक्लूजन। इट मीन्स व्हाट कंक्लूजन वी हैव फ्रॉम चाइना's story. It means only one person has the right to contest elections and form the government. Other parties like opposition parties, they are having no say in the election. उनको इलेक्शन में बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है, ओके, एंड दे आर अनेबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस। वो इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको ऐसा कोई राइट भी नहीं है, ओके। सो मेक्सिको, लेट्स स्टार्ट मेक्सिको। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मेक्सिको में इलेक्शंस होते हैं हर 6 साल बाद में अपना प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए, ठीक है। कब से, 1930s से। यानी यहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं। देखें, द कंट्रीज हैज नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। उस देश में कभी भी ना तो मिलिट्री का रूल रहा है न ही किसी डिक्टेटर का रूल रहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, ठीक है ना। जैसे हिटलर था, जबरदस्ती बना तब तो लोगों के सहमति से बन गए थे, लेकिन बाद में अपने हिसाब से काम करना शुरू कर लिया था, ठीक है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई पार्टी कॉल्ड PRI, ठीक है ना। 2000 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए सारे इलेक्शन किससे जीते, PRI फॉर्म जो एक पार्टी जो उसने जीते। नाउ
ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ऑपोजिशन पार्टीज भी इलेक्शन कंटेस्ट करती थी लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती थी। ठीक है। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। PRI को माना जाता था कि बहुत सी डर्टी ट्रिक्स यानी कि बहुत ही करप्शन का काम कर मतलब ये इलेक्शन जीत जाती थी। ठीक है ना। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। जितने भी लोग जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे उन्हें PRI की पार्टी मीटिंग में काम मतलब भाग लेना पड़ता था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल से उनको फोर्स किया जाता था, कहा जाता था कि पेरेंट्स को बोलो आप PRI पार्टी को वोट दे। ठीक है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया क्या करती थी, इग्नोर करती थी एक्टिविटीज को PRI की। ठीक है ना। क्रिटिसाइज भी नहीं करती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। ठीक है ना। कभी कभी जो पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ का मतलब होता है कि जहाँ पे वोटिंग डाली जाती है उस बूथ को चेंज कर दिए जाते हैं आखिरी मिनट्स में। ठीक है। लास्ट मिनट में क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ओके। विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। जिससे क्या हुआ, लोगों को वोट देना डिफिकल्ट हो जाता था। PRI स्पेंड a large sum of money in the campaign for its candidate। PRI बहुत सारा पैसा खर्च करती थी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, उसके प्रचार के लिए। ठीक है ना। So moving to next another example, we will look at the China। So elections do not offer the people any serious choice, है ना। जैसे हमने देखा कि मैक्सिको का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, चाइना का एग्जाम्पल देखा है। इससे ये मालूम चलता है कि ना तो चाइना के अंदर ऑफर किया जाता है लोगों को इलेक्शंस, इन इलेक्शन में लोगों के पास क्या है, चॉइस नहीं है। उनके पास एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। उसी कम्युनिस्ट पार्टी के उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन, यानी उसी कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट को उनको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ता है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। उस पार्टी के थ्रू जो भी कैंडिडेट को अप्रूव किया जाता है उसी को उन्हें चूज करना पड़ता है। सो कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? नो। हम इसको क्या चॉइस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आपके पास एक ही चीज है। सो कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? नो, वी कैनॉट कॉल दिस अ चॉइस। In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. In Mexican example, तो मेक्सिको का जो एग्जाम्पल हमने देखा था, उनके पास चॉइस दे रहे हैं उनको, है ना, लेकिन ऐसा दिखा तो रहे कि भी चॉइस है, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल में उनके पास कोई चॉइस नहीं है ना। यानी इलेक्शंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्शन तो पहले से फिक्स कर दिया जाता है, तो चॉइस ही नहीं है उनके पास। There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हारे, चाहे लोग उसके खिलाफ हो। So these elections are not fair। तो ये elections क्या फेयर नहीं है। So holding elections of any kind is not sufficient। The election must offer a real choice between political alternatives। इसलिए इलेक्शन जो किए जाते, किसी भी टाइप के जो इलेक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। केवल इलेक्शन करवाना ही सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना। केवल इलेक्शन करवाना ही सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शन में रियल चॉइस भी देनी जरूरी है पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की, यानी पॉलिटिकल पार्टीज होनी भी जरूरी है, ताकि ये पसंद नहीं आए तो वो कैंडिडेट को पसंद किया जा सकता है। ठीक है ना। इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। और ये भी पॉसिबल होना चाहिए कि लोगों का चॉइस हो कि वो जो एग्जिस्टिंग जो रूलर है, यानी जो अभी जो कार्य करने वाले जो रूलर्स है उनको हटाया भी जा सके, ऐसा भी काम होना चाहिए। यानी केवल इलेक्शन करवाना ही काफी नहीं है, इलेक्शन में लोगों को चॉइस देना भी जरूरी है। ठीक है ना। और ये भी जरूरी, और ऐसा भी होना चाहिए कि लोग जो है अपनी चॉइस को इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग रूलर को हटा भी सकें। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू फीचर्स, रेस्ट फीचर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Let's look at exercise. Here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right? Democratic, undemocratic, or not sure against each of these. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके पास 4 कंट्रीज, 4 देश की इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
इस इंफॉर्मेशन बेस पे आपको उनको क्लासिफाई करना है। कैसे? आपको बताना है कि कौन सी डेमोक्रेटिक है, कौन सा अनडेमोक्रेटिक है, किसके बारे में आप श्योर नहीं है, ठीक है। ये आपको इनके चारों तरफ लिखना है। जैसे आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस, दिस क्वेश्चंस आर योर इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक, ओके। सो कंट्री है, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। इसमें एक ऐसी कंट्री है जहां पे वो लोग जो उस देश का जो रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन को नहीं मानते हैं, उन्हें वोट देने का राइट नहीं है, ठीक है। कंट्री बी, द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। एक ही पार्टी, एक ऐसे देश भी है जिसमें एक ही पार्टी है जो कई पिछले 20 साल से इलेक्शन जीत रही है, तो क्या डेमोक्रेटिक है या नहीं है, आप बताएं। कंट्री सी, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। जो कंट्री थी है, सी है, उसमें जो रूलिंग पार्टी है पिछले 3 इलेक्शन को वो हार चुकी थी, ठीक है ना। कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। एक ऐसी कंट्री भी है डी जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic or not sure against each of these. वही पिछले पहले ही क्वेश्चन है, वैसे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सिचुएशन अलग है। यहां भी आपको डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक या नॉट श्योर लिखना है, ठीक है। सो कंट्री पी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ आर्मी। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो कोई लॉ पास नहीं कर सकता है, ठीक है ना, बिना आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी की पूछे, यानी जो चीफ ऑफ आर्मी है उनसे पूछे बिना ये कोई काम नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। कंट्री क्यू, पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है जुडिशरी की पावर को कम करने के लिए, ठीक है। कंट्री आर, द कंट्रीज लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। ऐसा देश भी है जो अपने पड़ोसी देश से पूछे बिना किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड कंट्री एस, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय द ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज। जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सब बैंक के ऑफिसर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक के जो ऑफिसर्स वो लेते हैं, मिनिस्टर्स उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड वाई। आपको बताना कि इनमें से कौन सा आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी फेवर में है और है तो क्यों है, ठीक है, फेवर में नहीं है। सो डेमोक्रेसीज, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन ए डेमोक्रेसी। लोग जो हैं डेमोक्रेसी में फ्री और इक्वल यानी समान फील करें, महसूस करते हैं। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, रिजॉल्व करती है कन्फ्लिक्ट एक बेटर तरीके से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है लोगों के प्रति जिम्मेदार ज्यादा होती है। एंड डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स। डेमोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा समृद्ध है दूसरों की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट दैट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स लिखने डेमोक्रेसी के, एंड देन डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है यानी समझाना है, ठीक है। दिस इज एंड in this video we will continue next 2 features in the next video. Okay, thank you very much.